हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर की शुरुआत हम करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाले टॉपिक से। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज सीन इन डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन स्किन कलर इंटेलिजेंट क्वोशंट. It is also called as cumulative effect. The phenotypic ratio is 1:6:15:20:15:6:1, जो आप बोर्ड बुक के पेज नंबर 15 से रेफर कर सकते हो, स्टेट बोर्ड बुक के पेज नंबर 15 से. The three genes control this character, that is the skin color is controlled by three genes A, B and C. Capital A, capital B and capital C are dominant form, which results in more melanin synthesis resulting in dark pigmentation, and small a, small b and small c are recessive and they result in light pigmentation. Depending upon the number of dominant genes, that is whether there are 6 dominant genes, 5, 4, 3, 2, 1 or 0, various type of phenotype is obtained. So the phenotypic ratio आपको लर्न करके रखना है. और इसके साथ आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर 85 पे रेफ़र करना है, न्यू एनसीईआरटी का. और ओल्ड एनसीईआरटी जिसके पास है उनको सप्लीमेंट्री मटेरियल में, मतलब एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस में ये कंसेप्ट मिलेगा. ठीक है. और इंटरमीडिएट फिनोटाइप का भी आपको जीनोटाइप पता होना चाहिए. इंटरमीडिएट फिनोटाइप के पर्सन को कहते हैं म्यूलैटो. कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी. So this was about polygenic inheritance. अभी हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन वेरियस एनिमल्स. तो 3 मैकेनिज्म हमें पढ़ने हैं, एलोजोमिक, नॉन एलोजोमिक और एनवायरमेंटल. एनवायरमेंटल तो हमारे सिलेबस में नहीं है, यू कैन गो थ्रू दैट विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स. हमें मेनली फोकस करना है एलोजोमिक, दैट इज सेक्स क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. केस नंबर 1 हम देखते हैं, XX female and XY male. In this type of sex determination, female is homogametic क्योंकि उनमें है 2 X chromosomes and they will produce only one type of gamete. That's why we will say that in this case female is homogametic. Next पेज से हम देखते हैं 2A plus XX. यह है जीनोटाइप ऑफ द फीमेल. 2A मतलब the sets of autosome, they occur in pairs. So during gamete formation, half of the gametes will be A plus X and other half will be A plus X. इनमें मेल होते हैं heterogametic because the genotype of male is 2A plus XY, that is 2 sets of autosomes plus a pair of 6 chromosomes X and Y. So half of the gametes will be A plus X called as gynosperm and half will be A plus Y called as androsperm. तो ह्यूमन में 44 autosome plus XY, this is the genotype of male, and 44 autosome plus XX, this is the genotype of female. फिर जैसा हमने लास्ट लेक्चर में लिंकेज ग्रुप पढ़े थे, तो फीमेल में लिंकेज ग्रुप होंगे 22 ऑटोसोम प्लस X और मेल में लिंकेज ग्रुप 22 प्लस X प्लस Y. लेकिन मेल गैमेट में, दैट इज स्पर्म में, there will be 22 autosome plus X या 22 autosome plus Y. Okay, so if 22 autosome plus Y, then that type of gamete is called androsperm, and if 22 autosome plus X, then that type of gamete is called gynosperm. फिर हम देखते हैं बर्ड्स, फिशेस और रेप्टाइल्स में द मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है. ZW फीमेल, ZZ मेल. इनमें मेल्स आर होमोगैमेटिक and females are heterogametic. They will produce 2 type of gametes. ठीक है. फिर in grasshopper, cockroach and ascaris, females are homogametic and males have only 1 X chromosome. O मतलब no X chromosome. So males have XO, that is only 1 X chromosome. In this type of sex determination, deficiency of 1 chromosome in male. In this, female is homogametic because female में है XX और male is heterogametic because male has only 1 X chromosome. So females will produce same gametes but male will produce 2 types of gametes. Half of the gametes won't have any X chromosome and half of the gametes will have 1 X chromosome. So this type of sex determination is called as XXXO, seen in cockroach and grasshopper.
तो जो मैं रेड से मार्क करता हूँ वो नीट के लिए अपने इम्पोर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इन ह्यूमन, फिर इन बर्ड्स, फिशेस एंड रेप्टाइल्स, एंड इन ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच। तो ये एग्जाम्पल्स नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ZOZZ, इसमें होता है फीमेल में एक सेक्स क्रोमोसोम कम होता है, तो इसे कहते हैं ZOZZ। तो इसमें हो जाता है फीमेल हेटेरोगैमेटिक एंड मेल होमोगैमेटिक। सो दिस इज सीन इन मॉथ एंड बटरफ्लाई। तो 4 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म है जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे XX XY तो ह्यूमन, फिर XX XO ग्रासहॉपर, ZW ZZ बर्ड्स और ZO ZZ मॉथ। तो मैंने एक एक एग्जांपल आपको बताया। XX XY ह्यूमन, XX XO ग्रासहॉपर, ZW ZZ बर्ड्स और ZO ZZ मॉथ। So this is about mechanism of sex determination in various animals. अभी हम पढ़ते हैं about non-allosomic और non-chromosomal method of sex determination. In some primitive forms, 6 chromosomes are not found. The sex determining factor or gene is located on some autosome. For example, sex factor or fertility factor in bacteria is present on F plasmid. Bacterial cells with fertility factor behave as male or donor cells, and those without F factor behave as female or recipient cells. फिर environmental method, you can just go through that with the help of your notes. अभी हम देखते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, दैट इज haplodiploid mechanism as seen in honeybee. In insects of order Hymenoptera, which includes ants, honeybees, wasps, sex determination takes place by sets of chromosomes. Diploid set is female and haploid set is male. In honeybee, male individual drone develops from unfertilized eggs, इसे कहते हैं parthenogenesis, and queen and worker bees develop from diploid or fertilized eggs. Queen is diploid having 32 chromosomes and it feeds on royal jelly, and the female which feed on bee bread, the female bee which feed on bee bread, it develops into worker, and worker is sterile female and queen is fertile female. So queen is diploid fertile female, worker is diploid sterile female, and drones are haploid fertile male. So drones are haploid. फिर हम पढ़ते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी सीन इन ड्रोसोफिला गिवन बाय CB Bridges. Y क्रोमोसोम इज नॉट एक्टिव, यहाँ पर करेक्शन आप कर लेना, Y क्रोमोसोम इज नॉट एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन. So Y chromosome is not active in sex determination. Sex index ratio, ये important है नीट के लिए, number of X chromosome upon number of sets of autosomes. So gene of femaleness is located on X chromosome and that of male is located on autosome. But the gene of male fertility, ऐसा क्वेश्चन आता है, where the gene of male fertility in Drosophila is located, so it is located on Y chromosome. फिर ये रेशियोज में नोट्स में हमने दिए है, वो आप लर्न कर सकते हो. X by A is equal to 1, then female, X by A is equal to 0.5, then male, X by A is equal to 1.5, then super female or meta female, X by A is less than 0.5, then super male or meta male, X by A between 0.5 to 1, then sterile. So this is the method of sex determination in Drosophila, जेनिक बैलेंस थ्योरी. तो स्टूडेंट्स ये रेशियो आपको पता होना चाहिए और ये वैल्यूज़ आपको लर्न करके रखना है. फिर NCERT में ये जो पार्ट है मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये है ऑन पेज नंबर 86 एंड 87 ऑफ न्यू NCERT, और ओल्ड NCERT में ये है पेज नंबर 85 और 86 पर. कुछ पॉइंट्स ओल्ड NCERT में जो चैप्टर में नहीं दिए है वो सप्लीमेंट्री मटेरियल में बुक के लास्ट में दिए NCERT बुक के, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन वेरियस एनिमल्स. अब हम पढ़ते हैं
जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उसमें पहले हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और फिर हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ते वक्त आपको नोट्स का पेज नंबर 11 रेफ़र करना है। तो आपको पहले ये लर्न करके रखना है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का लिस्ट है, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, पॉलीडैक्टिली और हंटिंगटन्स डिसीज़। ऑटोसोमल रिसेसिव में फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, अल्बिनिज्म। एक्स लिंक या सेक्स लिंक डोमिनेंट में विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। एक्स लिंक रेसेसिव में, सेक्स लिंक रेसेसिव में हेमोफीलिया ए बी, कलर ब्लाइंडनेस एंड डुचिनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। वाई लिंक आर हाइपरट्रैकोसिस। फिर सिकल सेल एनीमिया, जैसे हमने देखा ऑटोसोमल रिसेसिव, उसका जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। कलर ब्लाइंडनेस का एक्स क्रोमोसोम पर। फिनाइलकीटोन्यूरिया का क्रोमोसोम 12। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्रोमोसोम 7। अल्फा थैलेसेमिया क्रोमोसोम 16। बीटा थैलेसेमिया क्रोमोसोम 11 और हंटिंगटन्स डिसीज़ क्रोमोसोम 4। तो ये आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जैसे सिकल सेल एनीमिया विद द हेल्प ऑफ स्लाइड। तो बेटा आपको ये कंसेप्ट पहले याद रखना है। अगर मेंडेलियन डिसऑर्डर है ऑटोसोमल रिसेसिव, जैसे सिकल सेल एनीमिया, तो कैपिटल ए वाला जीनोटाइप वाले पर्सन विल बी नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कैरियर, एंड स्मॉल ए विल बी अफेक्टेड। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में हु विल बी अफेक्टेड? द पर्सन हैविंग जीनोटाइप स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कैरियर। अगर डिसऑर्डर है ऑटोसोमल डोमिनेंट, जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो कैपिटल ए वाले अफेक्टेड, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले भी अफेक्टेड और स्मॉल ए वाले नॉर्मल। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में कैसा होता है, जैसा हमने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो यहाँ पर फॉलो होता है। मतलब अगर डिसीज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप मैंने लिखे हैं, और एक बार लर्न कराता हूँ। ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो कैपिटल ए अफेक्टेड, कैपिटल ए स्मॉल ए वाले अफेक्टेड, मतलब दे विल शो द सिम्टम्स, दे विल हैव द डिसऑर्डर, बट स्मॉल ए वाले पर्सन विल बी नॉर्मल इफ द डिसीज इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल रिसेसिव का कैपिटल ए वाले पर्सन विल बी नॉर्मल, कैपिटल ए वाले कैरियर और स्मॉल ए वाले अफेक्टेड। तो सिकल सेल एनीमिया जो अभी हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अभी हम पढ़े सिकल सेल एनीमिया। तो आप देख सकते हो इट इज़ अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन बी, दैट इज़ बीटा चेन। यहाँ पर बीटा चेन के जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन में, उसके फॉर्मेशन में गड़बड़ होती है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। ओके, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन वेयर द जीन इज़ लोकेटेड ऑन 11 क्रोमोसोम। जो पर्सन नॉर्मल रहते हैं उसमें ये जीन नॉर्मल होता है, उसे कहते हैं HbA। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिक रहता है उनमें ये जीन एबनॉर्मल हो जाता है और फिर हम उसे कहते हैं HbS। तो वो हीमोग्लोबिन कैसा होता है? इट इज़ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और उन पर्सन के RBC हो जाते हैं लो ऑक्सीजन टेंशन में या लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में, सिकल शेप। जैसा NCERT में दिया है, इट इज़ ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, और म्यूटेशन के वजह से बीटा चेन के जो पेप्टाइड है उसमें 6th पोजीशन में ग्लूटामेट के जगह आ जाता है वेलाइन। ग्लूटामिक एसिड के जगह नॉर्मल पर्सन में क्या रहेगा? ग्लूटामिक एसिड एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, और सिकल सेल वाले जीन जिसमें है वो पर्सन में उसके जगह हो जाता है वेलाइन ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। और म्यूटेशन को अगर हमको डिटेल में आपको लिखना है तो इस म्यूटेशन को कहते हैं ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। फिर हम देखते हैं इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, द जीन इज़ ऑन 11 क्रोमोसोम। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल विल बी HbS, जैसा मैंने बताया था स्मॉल ए विल बी अफेक्टेड। कैरियर will have one normal gene and one abnormal gene, either the abnormal gene will be obtained from father or mother। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं कैपिटल A स्मॉल a, they will be called carrier, and
it has been found that they are resistant to Plasmodium falciparum. ठीक है, because they have some RBCs, their half of the RBCs are sickle shape. तो सिकल सेल एनीमिया में आप याद रखना, जैसा मैंने प्लियोट्रॉपी के वक्त भी इसका मेंशन किया था, सिकल सेल एनीमिया इज़ ऑल्सो क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी. फिर जो नॉर्मल लोग होते हैं एच बी ए कैपिटल ए दैट इज़ नॉर्मल. तो ये 3 जीनोटाइप और मैंने फिनोटाइप बताया है. अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस रेसेसिव. फिर इफ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, जैसा मैंने इस न्यूमेरिकल के ज़रिए बताया है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर, कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर. तो फिर यहाँ मैंने पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग का एक चार्ट बताया है, वो आप ड्रॉ कर लेना इस स्लाइड के मदद से. तो ये है गैमेट्स, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये 4 पॉसिबिलिटीज़. तो ये जिसे मैं 1 लिखता हूँ दैट इज़ होमोजाइगस नॉर्मल, 2 और 3 these are carrier, and 4 is homozygous recessive जिसे मैंने रेड से मार्क किया है. तो दैट ऑफस्प्रिंग इज अफेक्टेड. इट मे बी बॉय और अ गर्ल बिकॉज दिस इज अ ऑटोसोमल डिसीज. दिस इज नॉट अ सेक्स क्रोमोसोमल डिसीज लाइक कलर ब्लाइंडनेस. इट इज़ ऑटोसोमल डिसीज. फिर यहाँ पर मैंने एक लीथल जीन का रेशियो का भी आपको मेंशन किया है, जिससे ये रेशियो आप देख सकते हो. कैपिटल ए 1, कैपिटल ए स्मॉल ए 2 और स्मॉल ए 1. तो टोटल 4 में के कैपिटल ए 1 है, कैपिटल ए स्मॉल ए 2 है और स्मॉल ए 1 है. लेकिन जो स्मॉल ए है होमोजाइगस रिसेसिव, दैट ऑफस्प्रिंग डाइज, इसलिए रेशियो हो जाता है 2:1 या 1:2. तो सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लीथल जीन बिकॉज इट में इफ बोथ द जीन्स आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, जैसे होमोजाइगस रिसेसिव में, जैसा मैं मार्क करके आपको बताता हूँ इस केस में, सो दैट पर्सन कैन डाई. सो दिस इज़ अबाउट सिकल सेल एनीमिया. अभी हम पढ़ते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, वो भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़ है. इसमें फिनाइल एलानाइन नाम का अमीनो एसिड टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज. इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन. इस कारण बॉडी में, ब्लड में फिनाइल पायरुविक एसिड एक्यूमुलेट होता है, वो ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है, फिर उससे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है. एक्सेस ऑफ द फिनाइल पायरुविक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, इसलिए इसे कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया. इट इज़ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. ये भी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो. हमने यहाँ पर आपको उसका कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है. तो ये बोथ ऑफ दीज आर ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोन यूरिया. फिर हम पढ़ते हैं अबाउट कलर ब्लाइंडनेस. तो आप देख सकते हो कलर ब्लाइंडनेस इट इज़ अ एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज़ या सेक्स लिंक रेसेसिव डिसीज़. रेसेसिव डिसीज़ क्या होता है, अगर 2 जीन एबनॉर्मल रहे तो ही उसमें इंडिविजुअल अफेक्ट होता है. तो हम पहले देखते हैं मेल के जीनोटाइप्स. XY रहा तो नॉर्मल विजन, C डिनोट्स द एबनॉर्मल जीन. तो यहाँ मैंने C से एबनॉर्मल जीन डिनोट किया है. तो XCY मतलब कलर ब्लाइंड मेल. तो ऐसे मेल पर्सन्स कैसे रहेंगे, कलर ब्लाइंड. तो आप यहाँ देख सकते हो द जीन फॉर द कलर विजन इट इज़ सिचुएटेड ऑन X क्रोमोसोम. अगर नॉर्मल जीन है तो दैट मेल विल हैव नॉर्मल विजन, बट इफ दैट जीन इज़ एबनॉर्मल then that male will have color blindness. He will have color blind vision, मतलब उनको कोई कलर्स डिस्टिंग्विश नहीं होंगे, जो हम नोट्स के ज़रिए पढ़ेंगे. अभी हम देखते हैं अबाउट द जीनोटाइप ऑफ द फीमेल. XX तो नॉर्मल विजन, XXC तो इनमें एक जीन नॉर्मल है, एक जीन एबनॉर्मल है. तो ऐसे फीमेल को कहते हैं कैरियर. तो आप देख सकते हो फीमेल में होते, ह्यूमन फीमेल में होते 2 X क्रोमोसोम, इसलिए द ह्यूमन फीमेल कैन बी कैरियर. ह्यूमन मेल में कैरियर नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है फॉर कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज ह्यूमन मेल हैज़ ओनली 1 X क्रोमोसोम. और जो ये थर्ड जीनोटाइप है XC ये फीमेल में दोनों जीन एबनॉर्मल है, इसलिए ये फीमेल हो जाते हैं कलर ब्लाइंड फीमेल. तो आप देख सकते हो ह्यूमन फीमेल में 3 जीनोटाइप है कलर ब्लाइंडनेस के और 3 फिनोटाइप, एक नॉर्मल विजन, कैरियर या कलर ब्लाइंड. लेकिन मेल में ओनली 2 फिनोटाइप,
either male can be having normal vision or he can be colorblind. So if the father is colorblind and mother is carrier for color blindness, तो यहाँ पर हमने जीनोटाइप मेंशन किया है. So what are the probability of the various offsprings? तो हम probability देखते हैं. तो ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है पुनेट स्क्वायर, उसके मदद से आप इसे पढ़ सकते हो. तो आप देख सकते हो द 4 probabilities, जिसे मैं 1 लिखता हूँ, दैट इज़ कैरियर फीमेल, 2 इज़ कलर ब्लाइंड फीमेल और कलर ब्लाइंड डॉटर, 3 इज़ नॉर्मल सन एंड 4 इज़ कलर ब्लाइंड सन. तो यहाँ पर हमने लिखा है मेल ऑफस्प्रिंग के व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, 50% सन्स could be normal and 50% sons could be color blind. So if father is color blind, जैसा हमने इस न्यूमेरिकल में देखा, एंड मदर इज़ कैरियर, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट किया, 50% सन्स कैन बी नॉर्मल, 50% सन्स कैन बी कलर ब्लाइंड. वैसे ही 50% डॉटर कैन बी कैरियर एंड 50% डॉटर कैन बी कलर ब्लाइंड. अभी स्टूडेंट्स इसमें अगर पूछते हैं आउट ऑफ द टोटल ऑफस्प्रिंग्स व्हाट परसेंटेज ऑफ सन, टोटल ऑफस्प्रिंग पूछा तो ये वैल्यूज़ आपको हाफ करनी है. आउट ऑफ द टोटल ऑफस्प्रिंग्स व्हाट परसेंटेज ऑफ सन आर नॉर्मल, तो यू विल से 25% सन आर नॉर्मल, 25% सन आर कलर ब्लाइंड, 25% डॉटर आर कैरियर एंड 25% डॉटर आर कलर ब्लाइंड. अगर टोटल ऑफस्प्रिंग पूछा, और या फिर सिर्फ मेल ऑफस्प्रिंग्स में से कितनी प्रोबेबिलिटी है पूछा तो इसे डबल करना है, दैट इज़ 50% 50%. वैसा ही यहाँ पर भी डबल करना है. टोटल ऑफस्प्रिंग पूछा तो आपको मतलब ऑल द 4 कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आंसर करना है. सो दिस वाज अबाउट कलर ब्लाइंडनेस. फिर अभी हम नोट से कलर ब्लाइंडनेस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. तो कलर ब्लाइंडनेस में प्रोटेनोपिया इट इज़ फॉर रेड कलर, ड्यूटेरानोपिया फॉर ग्रीन कलर एंड ट्रिटेनोपिया फॉर ब्लू कलर, एंड इट इज़ चेक बाय इशिहारा चार्ट. तो इट इज़ मेनली द डिसऑर्डर ऑफ कोन्स. तो कोन्स में इसमें एबनॉर्मिलिटी होती है ड्यू टू द रेसेसिव जीन विच इज़ प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम. फिर जैसा एनसीईआरटी में मेंशन किया है, इट इज़ मोर कॉमन इन males, about 8% of males and only about 0.4% of females are color blind. Why? Because the genes that lead to red green color blindness are on X chromosome and males have only one X chromosome. मेल को X क्रोमोजोम मिलता है मदर से और Y क्रोमोजोम फादर से, और फीमेल को दोनों पेरेंट्स से मिलते हैं X क्रोमोजोम, इसलिए उनमें होते हैं 2 X क्रोमोजोम. ठीक है. फिर कलर ब्लाइंडनेस कैसा मोड ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न है उसका, क्रिस क्रॉस. तो आप नोट डाउन कर लेना, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. फिर जैसा हीमोफीलिया के बारे में अभी हम थोड़ा बात करते हैं. हीमोफीलिया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिसीज and it was first discovered by John Otto. The gene for hemophilia is also present on X chromosome and it is also a recessive gene. फिर ये डिसीज़ में भी ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस रहता है वो हैम्पर हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है. जैसे हीमोफीलिया ए इट इज़ ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर 8 डिफिशियंसी. फिर हीमोफीलिया बी इट इज़ ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर 9 डिफिशियंसी. फिर इसमें भी फीमेल्स आर कैरियर, दे हैव 3 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स सेम एज कलर ब्लाइंडनेस, एंड मेल्स हैव ओनली 2 जीनोटाइप्स एंड 2 फिनोटाइप. मेल कैन बी आइदर नॉर्मल और अफेक्टेड. फिर द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स बिकॉज शी वॉज अ कैरियर ऑफ द डिसीज़. तो ये सब पॉइंट आप एनसीईआरटी से देख सकते हो. तो हमने 4 मेंडेलियन डिसऑर्डर्स यहाँ पर पढ़े, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया. फिर और एक मेंडेलियन डिसऑर्डर अभी हम पढ़ेंगे, दैट इज़ थैलेसेमिया. तो थैलेसेमिया पढ़ते वक्त पेज नंबर, आप नोट्स का पेज नंबर 17 रेफर करना. थैलेसेमिया इट ऑकर्स ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ द जीन्स कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन चेन, कॉमनली अल्फ़ा एंड बीटा. तो उसके अल्फ़ा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया, डेल्टा थैलेसेमिया ऐसे टाइप से. अल्फ़ा थैलेसेमिया या अल्फ़ा ग्लोबिन का जीन होता है 16. नॉर्मल लोगों में वो जीन नॉर्मली काम करता है, लेकिन अल्फ़ा थैलेसेमिक पेशेंट में वो जीन में गड़बड़ी हो जाती है ड्यू टू सम म्यूटेशन. फिर बीटा थैलेसेमिया या बीटा ग्लोबिन या ग्लोबिन जीन का
पोजीशन होता है क्रोमोसोम 11 पर। बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट में इस जीन में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये आप नोट्स में मैंने पूरा डिटेल में आपको दिया है, आप नोट्स की मदद से ये पढ़ सकते हो। याद रखना थैलेसीमिया है ऑटोसोमल रिसेसिव, जस्ट लाइक सिकल सेल अनीमिया। तो 3 ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ अभी के लिए आप याद रखना, सिकल सेल अनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। फिर थैलेसीमिया में अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन चेन के फॉर्मेशन में गड़बड़ी होती है, तो थैलेसीमिया को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ओके, तो थैलेसीमिया को क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। हम सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कहते थे। थैलेसीमिया का याद रखना म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जब हम म्यूटेशंस पढ़ेंगे, जब मैं आपको ये मेंशन करवाऊंगा, दैट इज़ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन लीड्स टू थैलेसीमिया। फिर मैंने नोट्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में भी दिया है, क्योंकि अपने एनसीईआरटी में वो मेंशन किया है। इट इज़ ऑल्सो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर ऑफ इन्फेंट्स एंड इन दिस केस लीवर पैनक्रियाज आर अफेक्टेड। फिर बाकी के जो डिसीजेस है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, वो मैंने नोट्स के थ्रू आप कवर कर सकते हो। मैंने नोट्स के थ्रू आपसे वो आपको वो शेयर किए हैं, तो विद द हेल्प ऑफ नोट्स यू कैन गो थ्रू दैट। यहाँ पर एक माइलोजेनिस ल्यूकेमिया, ये एक आप याद रखना। हम म्यूटेशन पढ़ते वक्त ये पढ़ने वाले हैं, फिर भी अभी बता देता हूँ। इट इज़ कॉज बाय डिलीशन ऑफ सम पोर्शन ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 22 एंड इट्स एडिशन टू क्रोमोसोम 9। तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो ये चीज़ एक आप ये एक डिसऑर्डर याद रखना। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पेडिग्री एनालिसिस। So in pedigree analysis, study of ancestor history of man of transmission of genetic characters from one generation to the next is done, and the various disorders like dwarfism, albinism, color blindness, hemophilia are genetically transmitted characters. To study and analyze them, a pedigree of genetic facts or data and following symbols are used. So this concept is known as pedigree analysis. तो various symbols हमने दिए, आप वो नोट्स की मदद से देख सकते हो। नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल, मेटिंग या मैरिज। This is first generation, these are the offsprings, this is second generation, then monozygotic twins, dizygotic twins, then affected male, carrier for autosomal recessive disease, carrier female for sex linked recessive character or disease, death of the individual, abortion, then consanguineous marriage, that is marriage between related individuals. So these are important symbols in pedigree analysis. फिर जैसा हमने पहले पढ़ा था, ये जो पार्ट है ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए पढ़ते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर का पेडिग्री एनालिसिस। तो अभी हम पेडिग्री एनालिसिस के पहले कुछ ट्रिक्स या रूल्स देख लेते हैं, जिससे हमें सॉल्विंग में आसानी होगी। इफ़ दिस ऑर्डर इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात हो रही है और कोई ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड इज़ अफेक्टेड, देन एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड। अगर डिसऑर्डर है ऑटोसोमल डोमिनेंट लाइक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड एनी ऑफस्प्रिंग इज़ अफेक्टेड, देन उनके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स has to be affected, then and then only it will be passed to that child. ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर डिसऑर्डर इज एक्स लिंक लाइक कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड द सन इज अफेक्टेड सन है ड्यू टू कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया, तो उनके मदर शुड एटलीस्ट बी अ कैरियर, then and then only the son will get that abnormal gene because the gene will be transmitted through mother. फिर तीसरा वाला पॉइंट, अगर डिसऑर्डर है ऑटोसोमल रेसेसिव एंड ऑफस्प्रिंग इज़ अफेक्टेड, अगर डिसऑर्डर है ऑटोसोमल रेसेसिव जैसे सिकल सेल एनीमिया और ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, उन्हें वो डिसऑर्डर है लेकिन पेरेंट्स में नॉर्मल फिनोटाइप है, तो ये पेरेंट्स डेफिनेटली कैरियर होते हैं। मतलब उनका फिनोटाइपिकली दे आर नॉर्मल बट दे हैव वन एबनॉर्मल जीन, दैट इज़ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए नॉर्मल जीन एंड स्मॉल ए एबनॉर्मल जीन। तो ये 3 पॉइंट्स आपको काम आएंगे ड्यूरिंग
दिस पॉइंट्स विल बी वेरी यूजफुल ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी हम देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का पेडिग्री चार्ट। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, ये 3 जनरेशन वाला पेडिग्री चार्ट है। फर्स्ट जनरेशन को कहते हैं प्रोबैंड। फर्स्ट जनरेशन के जो पेरेंट्स है उनके ऑफस्प्रिंग्स को हम नंबर देते हैं 1, दैट इज एल्डर सन, फिर सन 2, 3 और 4 डॉटर एंड 5th सन। ठीक है, तो आपको इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से या प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करना है। अभी हम देखते हैं थर्ड जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है, हमने देखा है कि वो अफेक्टेड है, द सन इज़ अफेक्टेड, लेकिन उनके पेरेंट्स आर नॉट अफेक्टेड। तो पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है लेकिन सन अफेक्टेड है, तो ये डिसीज़ रूल नंबर 1 फॉलो नहीं करता, दैट इज़ जो हमने पढ़े थे 3 रूल्स, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देख सकते हो और एक बार, सन अफेक्टेड है लेकिन मदर कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया के कैरियर नहीं है, क्योंकि अगर वो कैरियर होते तो उन्हें बताते थे, ये अगर कैरियर होते मदर तो उन्हें इस तरीके से बताते थे, लेकिन वो कैरियर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं हो सकता। ठीक है, और एक हमें पता लगता है कि ये कलर ब्लाइंडनेस क्यों नहीं है। ये जो डॉटर है, अगर ये कलर ब्लाइंड होते तो इनका जीनोटाइप होता था XC, लेकिन इनके फादर, जो ये फादर तो नॉर्मल है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता। तो दिस इज़ नॉट अ एक्स-लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। तो अब रह जाता है सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव, जो ये पेडिग्री चार्ट है। इट इज़ अ पेडिग्री चार्ट ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो जैसा मैंने ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व किया, आपको न्यूमेरिकल्स में ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। अभी हम सबके जीनोटाइप्स लिख लेते हैं। अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर विल बी स्मॉल a स्मॉल a, तो द अफेक्टेड सन विल बी स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a। अभी जो ये अफेक्टेड सन है, इनके पेरेंट्स दे हैज़ टू बी कैरियर, तो इनको हम मेंशन कर लेते हैं कैरियर, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल a। ये जो सन है, इनके सिस्टर्स में भी होमोजाइगस डोमिनेंट और दे में बी कैरियर्स। ठीक है, तो इस पेडिग्री में कैरियर्स को हाफ शेड पोर्शन करके नहीं बताया सच्ची, तो कैरियर शुड बी शोन लाइक दिस। ओके, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं बताया ताकि आपको हमें सॉल्विंग कराना है ये न्यूमेरिकल। अभी ये जो सन है, इट कैन ऑल्सो बी कैपिटल A और कैपिटल A स्मॉल a, जो भी नॉर्मल है दे कैन बी कैपिटल A और कैपिटल A स्मॉल a। तो फर्स्ट जनरेशन के पेरेंट्स है, दे हैज़ टू बी कैरियर्स। वाई? क्योंकि उनके out of 5 offsprings 2 offsprings are affected, so the first generation parents has to be carrier। ये पेरेंट्स भी कैरियर है क्योंकि उनका एक सन अफेक्टेड है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में कैपिटल A these are normal, कैपिटल A स्मॉल a these are carrier and स्मॉल a are affected individual। तो ये हमने पढ़ा ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री चार्ट। वो 3 ट्रिक्स आप याद रखना और न्यूमेरिकल सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स-लिंक रिसेसिव का पेडिग्री चार्ट। और हमने आपको एक PDF सेंड किया है कुछ न्यूमेरिकल्स का, वो आज आप सॉल्व कर लेना, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।